Assalamu alaikum guys, hope so you're all fine. So today's video is going to be very interesting and important because we will discuss in this video what are 10 common English grammar mistakes and how to avoid them. So without wasting any time, let's move on to the video. The first mistake is subject verb agreement. As I have already uploaded a video on this topic, so you can also watch that video. I will provide a link in the description. Okay, subject verb agreement refers to the grammatical rule that states that the verb in a sentence must agree in number with its subject. Subject के according हम verb को use करेंगे. अगर subject singular होगा तो verb singular होगा. अगर sentence में subject plural आएगा तो verb plural use करेंगे हम, right? In other words, if the subject of a sentence is singular, the verb must be singular, and if the subject is plural, the verb must be plural. Here we have an example. The dogs loves to play. This is the incorrect sentence. The dogs loves to play. Correct. Can you spot the mistake? Yes. Love should be changed to love because loves is used for singular person, he, she, or it. So here we can see that there are multiple dogs, so we will use love instead of loves. So next mistake is misusing apostrophes. Our next mistake is misusing apostrophe. Apostrophes are not used to make plural words but rather to show possession or contraction. बाद स्टूडेंट जो हैं वो apostrophe को किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफ को ये फंक्शन नहीं है. वो अपोस्ट्रोफ जो है वो पोजेशन और कंट्रैक्शन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं. जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास, इनकरेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ टू इंडिकेट प्लूरल नाउन्स. आई हैव 3 एप्पल्स. दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस. आई हैव 3 एप्पल्स बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ अपोस्ट्रोफ कंट्रैक्शन, और ये तो पोजेशन को शो करता है, अपोस्ट्रोफ का साइन है, राइट? So the second one is the correct sentence. Okay, next mistake is confusing they are, there and there. Another common mistake is the confusion between they are, there and there. Let's clarify this. They are is a contraction of there. It is used to indicate a plural subject performing an action. So here in the picture we can see that there are plural subjects. We can see in the example that they are going to the movies tonight, so we will use they are because these are plural subjects. Okay, use of there. There is a possessive pronoun used to show ownership by a plural noun और ग्रुप ऑफ पीपल. प्लूरल नाउन की तरफ से ये ऑनरशिप को शो करने के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, दे लेफ्ट देयर बैग्स एट द होटल. अब बैग जो है वो उनकी पोजेशन को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम देयर यूज़ करेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव देयर. THERE देयर इज यूज टू इंडिकेट अ प्लेस और लोकेशन. ये वाला जो देयर है वो लोकेशन या प्लेस को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि एग्जांपल है, द कीज आर ओवर देयर ऑन द टेबल. कीज जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हैं, तो यहाँ पे जो देयर है वो कीज की प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, लोकेट कर रहा है, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज 3 वर्ड्स टू इंश्योर क्लियर एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन इन योर राइटिंग एंड स्पीच. सो देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दे आर, देयर एंड देयर, so we can easily clarify and accurate in our writing or communication, right? So mistake number 4 is run on sentences. Run on sentences, a common writing mistake occur when 2 or more independent clauses are improperly combined without proper punctuation or conjunction. जब 2 independent clauses को हम improperly combine कर देते हैं, ना उसमें कोई punctuation ना conjunction यूज़ करते हैं, तो दिस लैक ऑफ क्लैरिटी कैन लीड टू कन्फ्यूजन फॉर रीडर्स. ये रीडर्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. टू अवॉइड दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ पंक्चुएशन सच एज commas, semicolons or conjunctions like and, but or however to separate and connect independent clauses appropriately. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कॉमा, सेमिकोलॉन्स, कंजंक्शन जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया और हाउएवर हो गया, वो यूज़ कर सकते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए अप्रोप्रिएटली. So here is the example. I woke up early, I went for a run, it was refreshing. अब देखें यहाँ पे उसने कंबाइंड सेंटेंस लिख लिया है, ना उसमें कोई कोमा यूज़ हो रहा है ना कोई कंजंक्शन यूज़ हो रहा है. हमें नहीं पता चल रहा है कि सेंटेंस एक क्लॉज कब एंड हो रहा है और दूसरा कब स्टार्ट हो रहा है. तो सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस, आई वोक अप अर्ली, सो दिस इज़ 1 क्लॉज एंड यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ हो गया. उसके बाद आई वेंट फॉर अ रन, ये एक सेपरेट क्लॉज हो गया. इट वाज रिफ्रेशिंग, ये एक क्लॉज हो गया. सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. सो वी शुड यूज कॉमास, कोलॉन, सेमीकोलॉन्स टू मेक आवर राइटिंग मोर प्रिसाइज, राइट? द इनकरेक्ट सेंटेंस is a series of independent clauses without proper punctuation. By adding a comma and conjunction, we can create 2 clear and concise sentences. Mistake number 5, using your instead of you are.
Our fifth mistake is involves confusing you are sorry. Our fifth mistake involves confusing your and you are. Your is a possessive pronoun that shows ownership or belonging, indicating that someone belongs to someone. Your जो है वो possessive pronoun या ownership को show करने के लिए यूज़ होता है. इसी तरह से या किसी चीज़ को belong करने के लिए, रेफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं your. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इज़ दिस योर बुक, सो यहाँ पे your जो है वो हम बिलोंग कर रहे हैं कि क्या ये आपकी बुक है, तो इस सिलसिले में हम यूर यूज़ करेंगे, राइट. यू आर इज़ कंट्रैक्शन ऑफ यू आर, वेयर एज जबकि यू आर जो है वो यू आर की कंट्रैक्शन इट इज यूज टू एक्सप्रेस द सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल एंड इज फॉलोड बाय अ वर्ब. ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल को शो करने के लिए यूज़ होता है, राइट. फॉर इंस्टेंस यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यहाँ पे सेकंड पर्सन सिंगुलर को ये एक्सप्रेस करने के लिए हम यू आर को यूज़ करते हैं, राइट. अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन यूर एंड यू आर इज एसेंशियल फॉर क्लियर एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन इन राइटिंग एंड स्पीकिंग. यूर और यू आर में क्लियर डिस्टिंक्शन जो है हमें कम्युनिकेशन और राइटिंग में मोर एक्यूरेट करती है, राइट. हमारी कम्युनिकेशन राइटिंग या स्पीकिंग में ज़्यादा एक्यूरेट बनाती है, राइट. ओके, द सिक्स्थ मिस्टेक इज इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर. इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. फॉर एग्जांपल येस्टरडे आई मेट माय फ्रेंड एट द मॉल. लेकिन करेक्ट वर्ड ऑर्डर यही है कि ग्रामर में कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे देखेंगे येस्टरडे आ रहा है तो सेंटेंस के फर्स्ट में ही, तो ये incorrect sentence है. I met my friend at the mall yesterday, so this one is the correct because here I is the subject, met is the verb and friend is the object, right. So this is SVO order. In English the standard word order is subject verb object. By rearranging the sentence we make it grammatically correct and easier to understand. हम इसे सब SVO के अकॉर्डिंग रीअरेंज करके ग्रामेटिकली करेक्ट और easier to understand बना सकते हैं sentences को, right. The seventh mistake is improper use of articles. Improper use of articles is a common mistake that can affect the clarity and accuracy of your writing. Okay, example, I want to eat an apples for breakfast. सॉरी, यहाँ पे मैं S लगाना भूल गया, यहाँ पे प्लूरल आएगा, तो ये फर्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स हैं, तो जबकि एन जो है या ए जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो हम एन यूज़ नहीं करेंगे. आई वांट टू ईट एप्पल्स फॉर ब्रेकफास्ट, सो ये जो है करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि एन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास प्लूरल हैं, राइट. सो इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. कैन यू पास मी द पेन, सो दिस इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस क्योंकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, राइट. और डेफिनेट आर्टिकल जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है, सो वी विल नॉट यूज़. पेन जो है वो एक कॉमन चीज़ है तो इसलिए हम द यूज़ नहीं करेंगे. और कैन यू पास मी अ पेन, ये करेक्ट है क्योंकि जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है और ये कॉमन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए के साथ यूज़ होता है, राइट. द स्टूडेंट वर स्टडिंग द इंग्लिश, ये इनकरेक्ट है. द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इंग्लिश, ये दिस वन इज़ द करेक्ट, इसमें हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, राइट. आर्टिकल्स इन दिस एग्जांपल द आर्टिकल एन शुड बी यूज बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड. जो वर्ड्स जो हैं वो वोवल से शुरू होते हैं उससे पहले हम एन यूज़ करते हैं. बाय अंडरस्टैंडिंग द रूल्स फॉर आर्टिकल यू कैन मेक योर sentence is more precise, right. The is used when there is a specific or noun entity being referred to. The उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब कोई एंटिटी स्पेसिफिक हो, राइट. वेयर एज इनडेफिनेट आर्टिकल्स और एन आर यूज व्हेन द नाउन इज नॉन स्पेसिफिक और इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम. जब जो है नाउन वो नॉन स्पेसिफिक होगा उस वक्त हम इनडेफिनेट आर्टिकल और एन को यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव मिस्टेक नंबर 8, कन्फ्यूजिंग टू एंड टू. TOO is used to indicate also or in addition, and it can also mean excessively, right. I want to go to the party, meaning I also want to go to the party, right. यहाँ पे to जो है वो also को शो करने के लिए यूज़ हो रहा है. Similarly, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, मीनिंग द कॉफ़ी इज़ एक्सेसिवली हॉट. यहाँ पे एक्सेशन को शो करने के लिए टू यूज़ हो रहा है, राइट. यूज़ ऑफ टी और टू इज़ अ वर्सटाइल वर्ड विद मल्टीपल यूजेस सच एज इंडिकेटिंग डायरेक्शन और पर्पस. डायरेक्शन और पर्पस को शो करने के लिए इसी तरह स्टार्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव वर्ब, और इन्फिनिटिव वर्ब के स्टार्ट में टू यूज़ होता है, राइट. तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है. जैसे एग्जाम्पल है हमारा शी वेंट टू द स्टोर, तो उसने स्टोर की तरफ वेंट किया, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है. इसी तरह वी नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम, ये पर्पस को शो कर रहा है. इसी तरह से शी वांट्स टू लर्न टू प्ले द गिटार. अब टू प्ले जो है यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब है, राइट. यूज ऑफ टू इज अ न्यूमेरिकल वर्ड रिप्रेजेंटिंग द नंबर टू. आई हैव टू कैट्स, मीनिंग आई हैव टू कैट्स.
टू जो है वो नंबर को शो करने के लिए, क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है, राइट। दे बॉट 2 टिकट्स टू द कंसर्ट। ओके, मिस्टेक नंबर 9 हमारे पास, यूजिंग मी इंस्टेड ऑफ आई। आवर नाइन्थ मिस्टेक इन्वॉल्व्स द इनकरेक्ट यूज ऑफ मी इंस्टेड ऑफ, आवर नाइन्थ मिस्टेक इन्वॉल्व्स द इनकरेक्ट यूज ऑफ मी इंस्टेड ऑफ आई। ये मिस्टेक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू द मूवीज। So this is incorrect. My friend and I went to the movies. This is correct sentence. In this case, I is the subject pronoun which should be used when referring to yourself as a subject of a sentence. Using me in the context is grammatically incorrect. I क्या है, हमारे पास एक subject pronoun है ना, और वो हम अपने आप को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सिलसिले में हम I यूज़ करेंगे instead of me. So me, my friend and I went to the movies. So this sentence is correct. Okay, here is the last one. Mistake number 10. Overusing passive voice. Lack of clarity. Passive voice can make it unclear who or what is performing the action. Passive voice जो है वो ज़्यादा एक्शन को क्लियर और कंसाइज नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा होता कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। द केक वॉज बेक्ड बाय समवन। एक्टिव है इसका, समवन बेक्ड द केक, राइट। इसी तरह से वर्डीनेस, पैसिव वॉइस टेंड्स टू बी मोर वर्डी विच कैन मेक सेंटेंसेस लॉन्गर एंड लेस कंसाइज। सिमिलरली द रिपोर्ट वाज रिटन बाय द टीम मेंबर्स। पैसिव वॉइस टेंड्स टू बी मोर वर्डी विच कैन मेक सेंटेंसेस लॉन्गर एंड लेस कंसाइज। पैसिव वॉइस में इसमें वर्ड्स जो हैं सेंटेंस जो ज़्यादा लेंथी लॉन्गर बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, द रिपोर्ट वाज रिटन बाय द टीम मेंबर्स। इसका एक्टिव वॉइस ये होगा, द टीम मेंबर्स रोट द रिपोर्ट। मीनिंग दोनों सेंटेंस का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। पैसिव वॉइस में जो वो सेंटेंसेस लॉन्गर बनते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस जो है वो शॉर्ट बनते हैं, राइट। तो वी शुड यूज एक्टिव इंस्टेड ऑफ पैसिव। लैक ऑफ एम्फेसिस। पैसिव वॉइस कैन डिमिनिश द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। पैसिव वॉइस जो है वो सेंटेंस की इंपॉर्टेंस को डिमिनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है। पैसिव वॉइस में आप देखेंगे यहाँ पे मिस्टेक्स वर मेड, ये नहीं हमें पता चल रहा है किसकी तरह से मिस्टेक्स हुई, राइट। लेकिन एक्टिव वॉइस में जो है हमें क्लियरली कंसाइज पता चल रहा है कि वो मेड मिस्टेक्स। यहाँ पे जो है वो प्रोनाउन हमारे पास दिया गया, राइट। एक आइडेंटिटी हमें शो हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। 10 कॉमन इंग्लिश एरर्स को देखा और उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं।